سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اور سعودی عرب یکجان دو قالب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ جی ہاں، وزیر اعظم کا امت مسلمہ میں اتحاد پر زور، کہا کہ سفارتکاری کے ذریعے امن اور استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا۔ نئے سال پاکستان کے دورے کی بھی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم کیا۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹیلی فونک کال کی گئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو، اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے محمد بن سلمان کی محبت، خلوص اور گرمجوشی پر شکریہ ادا کیا، اور دونوں رہنماؤں نے جو پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ درینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور مملکت سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کو عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ کھیل کے میدان میں ہاتھ ملانے سے انکار، مگر سیاسی کھلاڑی گھل مل گئے۔ مئی کی جنگ کے بعد پہلی بار پاک بھارت رہنما آمنے سامنے۔ ڈھاکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ جے شنکر خود چل کر ایاز صادق کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا۔ چند منٹ کی گفتگو میں خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ بھی ہوا۔ تعریف وہ جو دشمن کرے۔ آپریشن سندور میں اپنے ماتھے پر کلنک لگوانے کے بعد بھارت کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کا پہلی بار آمنا سامنا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود چل کر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملنے آئے، مصافحہ کیا، اپنا تعارف کرایا کہ میں جے شنکر ہوں اور میں نے آپ کو پہچان لیا۔ ایاز صادق نے بھی مسکرا کر جواب دیا، بولے میں آپ کو جانتا ہوں۔ چند منٹ کی گفتگو میں خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ بھارت رہنماؤں کی ملاقات ڈھاکہ میں مرحومہ خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ بنیان مرصوص میں شکست کا مزہ چکھنے کے بعد یہ وہی مودی سرکار ہے جس نے کھیل کے میدان میں اپنے کھلاڑیوں کو ہاتھ ملانے سے منع کیا، لیکن کھیل کے میدان سے لے کر جنگ اور سفارتی محاذ پر بھی بری طرح سے ناکامی کے بعد جے شنکر کا ہاتھ بڑھانا خود ماں بھارت کے لیے حیران کن ہے۔ بھارت کی سرپرستی میں پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہی ہیں، خود مختاری کی خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملک دشمنوں کو للکار۔ جی ایچ کیو میں 18ویں قومی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، بلوچستان ترقی کا محور قرار دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈے مسترد کرنا ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز انتشار پھیلانے والوں کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیں گے۔ رپورٹ کریں گی سمیرہ خان۔ بلوچستان ترقی کا محور، سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈے مسترد کرنا ہوں گے۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی براہ راست ہو یا بالواسطہ، فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وطن دشمنوں کو للکار۔ جی ایچ کیو راول پنڈی میں بلوچستان سے متعلق 18ویں قومی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا بھارت کی سرپرستی میں سرگرم عناصر بلوچستان میں تشدد اور عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی اور انتشار پھیلانے والوں کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیں گی۔ دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا بلوچستان کا مستقبل انتشار نہیں، پائیدار خوشحالی ہے۔ بلوچستان کے عوام محب وطن، باہمت اور پاکستان کی طاقت، معاشی صلاحیت کو عوام کے فائدے کے لیے بروئے کار لانا ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پروپیگنڈا بے نقاب کرنے میں سول سوسائٹی کے مؤثر کردار کی تعریف کی۔ نشست کا اختتام ایک بامقصد سوال و جواب کے سیشن پر ہوا جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سوالات کے جوابات دیے اور بلوچستان کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے جاری کوششوں پر مزید روشنی ڈالی۔ سمیرہ خان، سما، اسلام آباد۔ خوش آمدید 2026، دنیا بھر میں سال نو کا شاندار استقبال۔ سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ اسکائی ٹاور آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ آسٹریلیا کا سڈنی ہاربر بھی روشنیوں میں نہا گیا۔ جنوبی کوریا نے بھی نئے سال کو کھلی باہوں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ لندن اور دبئی میں تیاریاں جاری۔ آخری جشن نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہوگا۔
दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल की आमद पर रंगारंग तकरीबात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। न्यूजीलैंड में साल 2026 को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर रंगो नूर की बरसात हुई। सिडनी हार्बर पर भी नए साल का जश्न मनाया गया। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। जनूबी कोरिया में भी साल 2026 का खूबसूरत अंदाज से इस्तकबाल किया गया। दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। चीन में नए साल का आगाज हो गया। बीजिंग में आतिशबाजी, फनकारों ने ड्रम बजाकर खुशी का इजहार किया। नाजरीन, 2025 चंद घड़ियों का मेहमान, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें दामन में समेटे ये साल रुखसती के लिए तैयार है। शहर शहर नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी और हल्ला गुल्ला होगा। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कराची से हमें ज्वाइन के इकरा अवान ने, लाहौर से मायरा हाशमी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद पाक व्यू से अलीना शाहिद हैं और फैसलाबाद से नईम कैसर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं मायरा का। मायरा, मंजर कशी कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के दिल लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ 2026 का शानदार इस्तकबाल करने की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। शुरू हो चुका है, 2 घंटे से भी कम वक्त जो है वो बाकी रह गया है। यहाँ आवाम का जम्मे गफीर पहुँच चुका है। कौमी तरानों से शहरियों का लहू गरमाया जा रहा है। नई उम्मीदें, नई उमंगें हैं, नया साल है तो सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये नया साल नई खुशियाँ लेकर आए। यहाँ लिबर्टी चौक में बच्चे हो, बड़े हो, फैमिलीज हो, सब ही पहुंच चुके हैं ताकि 2026 का जो है वो इस्तकबाल किया जा सके। 2025 चूँकि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशहाल साल रहा। अगर हम लोग मार्का हक की बात करें, अगर हम लोग खेलों के मैदान की बात करें तो हर मैदान में ही पाकिस्तान कामयाबियाँ जो है वो सिमटता रहा। अब यही उम्मीदें जो है वो 2026 से भी की जा रही है। तो बहुत ही हसीन मनाजिर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर लिबर्टी चौक। मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद पार्क व्यू से अलीना शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अलीना, बताइए इस्लामाबाद में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से वेलकम करेंगे वहां के लोग? न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाए खबरदार, इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची में दफा 144 नाफिज कर दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार किया है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से फायरिंग करने वालों को पकड़ेंगे। न्यू ईयर नाइट पर सीव्यू खुला रहेगा। फैमिलीज के साथ जश्न मनाएं, मगर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने का सबब न बने। राजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नए साल की आमद है। नए साल में हम देखते हैं हवाई फायरिंग के वाक़यात में लोग ज़ख्मी भी होते हैं और जानी नुकसान भी होता है। क्या हिकमत अमली है पुलिस की, इस पर किस तरह का मुकदमा आप दर्ज करेंगे? 5 से 6 हज़ार की नफरी जो न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए शहर में डिप्लॉयड होगी, उसके ज़रिए SHOs 15 मददगार और दूसरी चीज़ों के ज़रिए। लेकिन जो पूरा निज़ाम, मरबूत निज़ाम एक बनता जा रहा है सेफ सिटी का, और इसके कैमरा, CCTVs और प्राइवेट कैमरास तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो शहर में हम थैंकफुल हैं, शहरियों ने, कारोबारी हजरात ने जो लगाए हुए हैं, उसके ज़रिए हम आपको ट्रैक कर लेंगे और आप पे बड़ा सख्त पर्चा, जो कि आम हवाई फायरिंग का पर्चा नहीं होगा, बल्कि ये पर्चा आपके इक़दाम कत्ल का होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों की जानिब से नए साल के आगाज पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम। दिफाए वतन के गैर मुतजलजल अज़्म, कुर्बानी और वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार किया। पाक वतन के मुहाफिज कहते हैं शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकता। फौजी जवान अपने घरों और अहले खाना से दूर बर्फ में मोर्चों पर खड़े होकर वतनी अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी,
हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक में दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं इस अज़म के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं, वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है और जान दे कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वेलकम बैक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का सफ़र आखिरत शोहर और साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया सफ़र आखिरत पर रवाना। हजारों पुरनम आंखों के सामने ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फर्जंद तारिक रहमान ने अपनी वालदा को कब्र में उतारा। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका के मानिक मियां एवेन्यू में अदा। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, सिफारतकारों और दुनिया भर से आए सरकारी मेहमानों ने शिरकत की। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के खतीब मुफ्ती अब्दुल मालिक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम का ताबूत कौमी परचम में लिपटा हुआ था। जनाजे में बांग्लादेश भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। पार्लियामेंट के बाहर दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मुल्क भर में आम तातील थी। हुकूमत ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया था। खालिदा ज़िया गुज़िश्ता रोज 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। अब आपको बताएं कि हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप RSS कैसे भारत की सियासत पर काबिज हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दहशतगर्द तंजीम और सियासी सरपरस्त बीजेपी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हिटलर के नजरिए से मुतासिर RSS का सियासी चेहरा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह पर गामजन है। RSS की 100 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ऐसी पॉलिसी की बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया। अक़लियतों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दहशतगर्द तंजीम अब भारतीय रियासती इदारों में सरायत कर चुकी है। तालीम, मीडिया, अदलिया, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर शिद्दत पसंदों के निर्गे में है। नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म से ज्यादा RSS का कारकुन बनकर काम कर रहे हैं। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अकोड़ा खटक का अरमान उल्लाह जान गवा बैठा। बेरहम इंसानी स्मगलर्स ने अरमान को तुर्की और ईरान की सरहद पर बर्फपोश पहाड़ों में बेयारों मददगार छोड़ दिया। अरमान मौसम की सख्तियां बर्दाश्त न कर सका और जान से गया। आज अरमान की लाश उसके घर पहुंची है। मजीद बात करते हैं पेशावर में समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। शहाब, बताइए। के 22 दिसंबर को समा ने नौशेरा के 2 नौजवानों के हवाले से एक खबर जलाई थी जो कि इंसानी स्मगलरों के झूठे वादों का शिकार हुए और ईरान और तुर्की के सरहद पर सख्त सर्दी के बायस जाँ बहक हुए। मेरे साथ उसके कज़न मौजूद है, उनसे तमाम तर इस अहवाल के बारे में जानते हैं। उसके पीछे फिर हम लोग गए तप्तान तक, वहाँ नहीं मिले। तो जब हम हमारा वापस ही हुआ है तो एजेंट ने कॉल किया कि भाई आपका बच्चा जो है वो हमारे पास है ईरान में, तो आप ऐसा करें कि आप पैसे दे दे तो इसको मैं मतलब तुर्की ले जाता हूँ। हमने कहा है कि सर तुर्की न ले जाए, इसको आप पुलिस के हवाले कर दे, जितना पैसा आपका लगने हम भेज देते हैं। उसने बोला ठीक है 1 लाख रुपए भेजे। और ये एजेंट थे कौन, कुछ पता है इनके बारे में? ये एजेंट एक अफ़गानी थे, उसका हसन नाम था, हसन अफ़गान के नाम से। तो वो तुर्की, वो बोलते कि मैं तुर्की में हूँ। तो उसका जो दूसरा जिस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो इधर ही पाकिस्तानी है, जितने अकाउंट है वो पाकिस्तान की है। अहले कराची के लिए नए साल का तोहफा 50 साल बाद डबल डेकर बसें चलेंगी। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। किराए कीमत में सब्सिडी देने का ऐलान भी किया। बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हाल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। फिलहाल 5 डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी जिसका कम से कम किराया 80 रुपए रखा गया है। बस में 50 से ज्यादा मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। बुजुर्गों के सुनते थे कि कराची में किसी ज़माने में डबल डेकर बसें चलती थी, लेकिन आज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ख़वातीन के लिए तो ये बहुत अच्छी है, जो ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आरामदेह महसूस, अच्छी सर्विस मिल गई है। पहले तो हम बैरून ममालिक में ये बसें सिर्फ देखा करते थे, आज कराची में देख रहे हैं और उसमें बैठ के सफ़र कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिंध हुकूमत का इक़दाम है। मुल्क के शमाली और बलाई इलाकों में सफ़ेद मोती बिखर गए, सयाहों की मौज मस्तियाँ, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे ने, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं।
कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सवात की वादी मालम जब्बा में आसमान से गिरते रुई के गालों ने मौसम को मजीद औसम कर दिया। सयाहों ने चेयर लिफ्ट की भी खूब सैर की। दीर के बालाई इलाकों लिवारी टॉप और चित्राल में भी 10 इंच तक बर्फ पड़ी। जिले इंतजामिया की सयाहों और मुसाफिर गाड़ियों को टायरों पर चेन लगाने की हिदायत। खैबर की वादी तीरा में भी बर्फबारी ने हर तरफ सफेदी फेर दी।